Good morning, students. Now, in 12th class, we study about integration and differentiation both. Now, in differentiation, we are differentiate dependent variable with respect to independent variable. For example, if y is dependent variable and x is independent variable, then first order ordinary derivative is denoted by dy by dx. First order ordinary derivative is given by dy by dx, and dy by dx is denote rate of change in y with respect to x. Rate of change in y with respect to x, it means x के अंदर जितना भी चेंजेस हुआ होगा उसके रेस्पेक्ट में y में जो चेंजेस आ रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो कहलाती है डेरिवेटिव, उसे डिनोट करते हैं dy by dx. Now one independent or one dependent variable है, then it is called ordinary derivative. क्या कहलाती है आपकी? Ordinary derivative. But if we have more than one independent variable, suppose u is a dependent variable and it is dependent on x, y and z, where x, y and z are independent variable, then rate of change of u with respect to x, y and z are denoted by partial derivative, और उसे बोलेंगे हम partial differentiation. ठीक है ना? partial differentiation कब होता है? When we have more than one independent variable, then the differentiation with respect to independent variable are called partial derivative, और जो process है वो क्या कहलाएगी आपकी? partial differentiation. तो u का जो x है वो differentiation करेंगे तो वो कहलाएगा del u by del x. u का y के रेस्पेक्ट में differentiation del u by del y, और u का z के रेस्पेक्ट में differentiation del u by del z. This is called first order derivative. This is called first order derivative. Now dy by dx, differentiation by first principle जो है वो किसे डिनोट किया जाता है? लिमिट del x टेंड्स टू 0, del y by del x equals to f(x) plus del x minus f(x) limit del x tends to 0 f(x) plus del x minus f(x) upon del x. तो dy by dx किसके होता है? लिमिट del x tends to 0 f(x) plus del x minus f(x) upon del x. ना इसे अगर del u by del x को डिनोट किया जाए तो del u by del x आपका हो जाएगा u का चेंजेस किसके रेस्पेक्ट में होगा? x के चेंजेस रेस्पेक्ट में होगा. तो उसे लिखेंगे लिमिट del x tends to 0. नाउ फंक्शन किस में चेंज हो रहा है? ओनली x के अंदर. तो इसे लिखेंगे u x plus del x yz कांस्टेंट माइनस ux yz अपॉन del x. ये वैल्यू आपको मिलेगी del u by del x की. सेम प्रोसेस करके del u by del y को डिनोट करना है तो लिमिट del y tends to 0, x कांस्टेंट चेंजेस ना हो रहा है, y में हो रहा है तो उसको डिनोट किया जाएगा y plus del y माइन z अपॉन माइनस ux yz अपॉन del y, और del u by del z को डिनोट करना तो ये आपका होगा लिमिट del z tends to 0, u x y आपका कांस्टेंट है, चेंजेस किस में हो रहे हैं? z में हो रहे हैं, z plus del z माइनस ux yz अपॉन del z. तो जब सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उस केस में जो डिफरेंशिएशन होता है वो तो कहलाता है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन. बट एक से ज़्यादा अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस केस में जो डिफरेंशिएशन होगा वो कहलाएगा आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन. क्लियर? तो ये था आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन. आज जो अपन न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो पार्शियल डिफरेंशिएशन पे ही कर रहे हैं. ठीक है? आज जो अपन न्यूमेरिकल प्रोसेस कर रहे हैं वो आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं है. ये बीटेक फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेम और बीएससी फर्स्ट ईयर दोनों में इंक्लूडेड टॉपिक, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बीटेक वालों के लिए भी और बीएससी वालों के लिए भी. क्लियर?
नाउ u की जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो तो क्या है du by dx, du by dy, du by dz, these are the first order derivative. नाउ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगी, u का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव को आपको डेल से ही डिनोट करना है, del u by del x, del u by del y एंड del u by del z. नाउ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपकी हो जाएगी del u upon del x स्क्वायर. जब del u by del x का अगेन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आपको आएगा del u upon del x स्क्वायर, del u upon del x del y. जब del by del x del u by del y का डिफरेंस आप x के रेस्पेक्ट में करोगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनेगी del u upon del x del y. इसी तरह नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बना सकते हो del u upon del z स्क्वायर, del u upon del y del z, del u upon del x del y. पार्शियल डिफरेंस में किसे डिनोट करना है आपको, del से डिनोट करना है. और ऑर्डिनरी डिफरेंस जहां होता है सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल जहां होता है वहां पर d यूज करते हैं. तो ये डिफरेंस है ऑर्डिनरी और पार्शियल के अंदर. जहां पर पार्शियल डिफरेंस को यूज कर रहे हैं वहां पर del यूज करेंगे और जहां ऑर्डिनरी डिफरेंस को यूज कर रहे हैं वहां d यूज करेंगे. तो del u by del x, del u by del y एंड del u by del z ये कहलाती है आपकी पार्शियल डेरिवेटिव एंड du by dy by dx आपकी कहलाती है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव. Now question number first, find the first order derivative. Question number first is now find the first order derivative of u equals to tan inverse x by y. इसकी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालनी है. तो u डिपेंडेंट वेरिएबल है, x एंड y आपकी क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो del u by del x डिफरेंशिएट इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x एंड y. फर्स्ट अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, del u by del x, u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में. नाउ डिफरेंशिएशन में याद रखना जब भी आप डिफरेंशिएट कर रहे हो अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो रिमेनिंग जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो रिमेनिंग वेरिएबल्स आपके कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे. तो यहाँ दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y. जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y को कांस्टेंट ट्रीट करना है और y को के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट कर रहे हो तो x को कांस्टेंट ट्रीट करना है. तो फर्स्ट अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं del u by del x. इट मींस y यहाँ क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा. बाकी डिफरेंशिएशन के सारे रूल्स वही रहेंगे जो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के थे. ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ नोटेशन डिफरेंट है. और जब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो रिमेनिंग वेरिएबल्स क्या रहेंगे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे. तो del u by del x फर्स्ट डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स का. tan इनवर्स का डिफरेंशिएट क्या है 1 upon 1 plus x स्क्वायर होता है. तो 1 upon 1 plus x स्क्वायर, x के लिए पूरा है x upon y का होल स्क्वायर. ये डिफरेंशिएशन हो गया tan इनवर्स का. देन x upon y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x का 1 y कांस्टेंट. नाउ इसे सिंपलीफाई कर लो तो ये आपको हो जाएगा एलसीएम लोगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और डिनोमिनेटर जो y स्क्वायर को न्यूमरेटर में चला जाएगा इनटू 1 upon y से y कैंसिल. तो y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये है वैल्यू आ गई del u by del x की. और del u by del y u का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y where x is constant. First tan inverse का डिफरेंशिएशन 1 upon 1 plus x upon y square. x upon y का y के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट और 1 upon y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का 1 upon y स्क्वायर. 1 upon x का क्या होता है माइनस 1 upon x स्क्वायर. तो 1 upon y का हो गया माइनस का 1 upon y स्क्वायर. नाउ सिंपलीफाई करो इसे माइनस एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और जो डिनोमिनेटर में y स्क्वायर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा x अपॉन y स्क्वायर. y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल तो माइनस x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. तो ये इसकी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव.
ठीक है, इससे आप सेकंड ऑर्डर पे निकाल सकते हो। अगेन डिफरेंशिएशन करना एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स मिल जाएगी। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम? सिंपल सा डिफरेंस किया है, जब x के रेस्पेक्ट में किया है तो y को कॉन्सेंट्रेट किया है, और जब डिफरेंस अपन y के रेस्पेक्ट में करें तो x को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, if z x plus y equals to x square plus y square, then prove del z by del x minus del z by del y का होल स्क्वायर equals to 4 1 minus del z by del x माइनस डेल जेड बाय डेल वाई, ये आपको प्रूव करना है। गिवन क्या आपके पास जेड इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, गिवन नहीं है आपके पास कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं। आपको जो प्रूव करना है वहीं से आइडेंटिफाई करना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है ना। यहाँ डेरिवेटिव जो है वो जेड की एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में हुई है, जेड की डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, इट मींस z is the dependent variable and x and y are और independent variable। z यहाँ पे आपका dependent variable है और x और y यहाँ पे independent variable है। तो given इक्वेशन को z in terms of x पर पुट करो तो z इक्वल टू आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x प्लस y। z इक्वल टू आ गया अपना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x प्लस y। नाउ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी है, del z by del x and del z by del y। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x and y, del z by del x, z का डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, u को भी हो जाएगा डिफरेंशिएशन v स्क्वायर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, v कांस्टेंट x प्लस वाई कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ u x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस u कांस्टेंट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ v x प्लस वाई का डिफरेंस आपका हो जाएगा 1। नाउ इसे सिंपलीफाई करोगे 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या बचेगा आपका x स्क्वायर बचेगा x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, सीधा सा आपने u को v से डिफरेंशिएट किया है। अगर u को v का फॉर्मूला याद नहीं है तो देख लो से u by v जो फॉर्मूला था वो आपको पता है v कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को अपन ने यूज किया u अपॉन v से। नाउ नेक्स्ट y को स्टैंड करना है del z by del y, इक्वेशन फर्स्ट को अगेन y के साथ डिफरेंशिएट करो v स्क्वायर x प्लस y का होल स्क्वायर, v कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ u x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में, x कांस्टेंट है 0 y स्क्वायर हो गया 2y माइनस u कांस्टेंट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ v x प्लस y का डिफरेंस आपका हो गया 1। नाउ इसे सिंपलीफाई कर लो 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आपका रिमेनिंग बचेगा y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस x स्क्वायर अपॉन x प्लस y का होल स्क्वायर। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड। तो ये तो वैल्यू आई आपकी del z by del x और del z by del y। नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जो आपको वेरीफाई करना है उसमें वैल्यूज पुट करो। फर्स्ट तो आपको वैल्यू निकालनी है del z by del x माइनस del z by del y, और यहां से माइनस कॉमन ले लोगे तो आपको वैल्यू निकालनी है del z by del x प्लस del z by del y की।
तो दोनों इक्वेशन सेकंड माइनस थर्ड और सेकंड प्लस थर्ड दोनों की वैल्यू निकालो। इक्वेशन सेकंड माइनस थर्ड एंड सेकंड प्लस थर्ड। ना इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस थर्ड आपका हो जाएगा डेल z बाय डेल x माइनस डेल z बाय डेल y। ना माइनस कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2xy कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ओपन कर देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में। क्या होता है अपना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b। ये आपको हो जाएगा x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल 2x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। ये वैल्यू आपकी आई है डेल बाय डेल एक्स डेल z बाय डेल x माइनस डेल z बाय डेल y। किसकी वैल्यू की आपकी डेल z बाय डेल x माइनस डेल z बाय डेल y की वैल्यू। नाउ सेकंड फाइंड आउट करना है डेल z बाय डेल x प्लस डेल z बाय डेल y दोनों सेकंड प्लस थर्ड करो। इक्वेशन नंबर सेकंड प्लस थर्ड इक्वेशन नंबर सेकंड प्लस थर्ड डेल z बाय डेल x प्लस डेल z बाय डेल y। ना जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल और माइनस वाई स्क्वायर से प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2xy प्लस 2xy 4xy अपॉन x प्लस y का होल स्क्वायर। तो डेल z बाय डेल x माइनस डेल z बाय डेल y एंड डेल z बाय डेल x प्लस डेल z बाय डेल y की वैल्यू आ गई। अब चेक करो इक्वल है यानी तो 1 माइनस डेल z बाय डेल x प्लस डेल z बाय डेल y की वैल्यू निकाल लेते हैं 1 माइनस 4xy अपॉन x प्लस y का होल स्क्वायर। एलसीएम क्या हो जाएगा x प्लस y का होल स्क्वायर x प्लस वाई का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy। इसे सिंप्लीफाई कर लो तो ये बच रहा है अपना एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। किसका फॉर्मूला बन रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो इसे तो यह हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी आ गई 1 माइनस डेल z बाय डेल x माइनस डेल z बाय डेल y की। ना वैल्यूज पुट करो जो वेरीफाई करना है दोनों के अंदर वैल्यूज पुट करो। फर्स्ट वैल्यू है डेल z बाय डेल x माइनस डेल z बाय डेल y की उसका स्क्वायर कर लो डेल z बाय डेल x माइनस डेल z बाय डेल y का स्क्वायर। तो ये आपको हो जाएगा 4x माइनस y का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस y का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लो ठीक है। डेल z बाय डेल x माइनस डेल z बाय डेल y की वैल्यू क्या थी 2x माइनस y अपॉन x प्लस y का होल स्क्वायर। तो आपका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 x माइनस y का स्क्वायर अपॉन x प्लस y का होल स्क्वायर। ये तो आपकी वैल्यू आ गई डेल z बाय डेल x माइनस डेल z बाय डेल y का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 1 माइनस डेल z बाय डेल x प्लस डेल z बाय डेल y की वैल्यू x माइनस y का स्क्वायर अपॉन x प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल है।
लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हैंस ये आपको प्रूफ करना था। डेल जेड बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर माइनस डेल जेड बाय डेल वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या देगा 4 1 माइनस डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस डेल जेड बाय डेल वाई, दोनों साइड इक्वल है। क्लियर? तो ये थे आज के अपने न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्लास में अपन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।